خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے. آمین. اب مجھے اور آپ کو خیال کرنا ہے کہ میں اور آپ کہاں سے گرے ہیں. میں اور آپ کہاں سے گرے ہیں. یہی تقاضا افسس کی کلیسیا سے خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں، اور آج یہی تقاضا مجھ سے اور آپ سے ہے. یہی سوال اس وقت اس کلیسیا سے تھا، آج مجھ سے اور آپ سے ہے کہ بس خیال کر، دھیان کرنا ہے. مجھے اور آپ کو دھیان کرنا ہے کہ ہم کہاں سے گرے ہیں. اگر تو ہم گرے ہیں تو آج ہمارے لیے ایک بڑا خدا کا منصوبہ ہے کہ ہم پھر سے بحال ہو جائیں. آمین. اگر ہم گر چکے ہیں تو آج خدا کا کلام میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں. آمین. ہم اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ خدا یہاں پر فرماتا ہے بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے. بس خیال کر. اب بس خیال سے کیا مراد ہے؟ ہر شخص کے لیے آج وارننگ ہے. آمین. اگر کوئی گرا ہوا ہے جس کے اندر سے وہ پہلی سی محبت جا چکی ہے، وہ پہلی سی محبت ہٹ چکی ہے، وہ پہلی سی محبت ختم ہو چکی ہے، تو آج خدا کا بندہ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے کہ بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے. آمین. اب فیصلہ میرا اور آپ کا ہے. اب فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم کہاں سے گرے ہیں. ہمارا کیا لیول تھا خدا کے حضور میں، ہماری کیا پریئر لائف تھی، ہماری کیا خدا کے ساتھ محبت تھی. اب یہاں پر وہ فرماتا ہے افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ. آمین. اب خدا کے خادم کو فرشتہ بھی کہا گیا ہے. مکاشفہ کی کتاب کے اندر کیا کہا گیا؟ فرشتہ. ان ساتوں کلیسیاؤں کے ساتوں کلیسیاؤں کے خادموں کو فرشتہ کہا گیا ہے. آمین. اب آپ اندازہ کریں کہ کیا رسپیکٹ ہے خدا کے خادموں کی بائبل کے اندر. آمین. اب لیڈر کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے، وہ فرماتا ہے اس کلیسیا کے خادم کے نام لکھ دے، اس کلیسیا کے پاسبان کے نام لکھ کہ تیری کلیسیا کے اندر جس کا تو پاسبان ہے، جس کو تو لیڈ کر رہا ہے، وہ کہاں سے گری ہے. خدا کہتا میں ساتوں چراغ دانوں میں پھرتا ہوں. اب وزٹ ہو رہا ہے. خداوند یسوع مسیح ہر کلیسیا کو وزٹ کر رہے ہیں، اور جب وزٹ کیا جاتا ہے، جب کسی کے گھر کے اندر جایا جاتا ہے، جب کسی کے گھر کے اندر میں اور آپ جاتے ہیں تو ہم ان کے حالاتوں سے کیا ہو جاتے ہیں واقف. اور یہاں پر جب مسیح یسوع نے وزٹ کیا تو وہ کلیسیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی محبت پسند تھی، وہ بڑی خدا پرست تھی، وہ بڑی خدا کے ساتھ محبت کرنے والی تھی. جب ہم اس کلیسیا کو خطوں کے اندر پڑھتے ہیں تو یہ بڑی سرگرم کلیسیا تھی، جشیلی کلیسیا تھی، لیکن مکاشفہ کی کتاب تک آتے آتے وہ اپنی محبت کھو چکے تھے. جس قدر انہوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا، جس جذبہ جس جنون سے انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، لیکن قبولیت کے بعد وہ آہستہ آہستہ ان کے اندر سے مسیح یسوع کے بارے میں جو خیالات تھے، جو مسیح یسوع کے ساتھ ان کی محبت تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. پھر خدا اپنے بندہ یوحنا کو خط کے ذریعے سے کہتے کہ ان کو بتا کہ میں تمام کی تمام باتوں کو جانتا ہوں، تمہاری محنتوں کو، تمہارے کاموں کو جانتا ہوں، لیکن مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تم نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. آمین. آمین. ہر وہ شخص جو شروع کے دنوں میں بڑا جشیلا، جوش اور جذبے سے بھرا ہوا خدا کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، لیکن آج اگر اس کی زندگی کے اندر وہ پہلی سی محبت ختم ہو چکی ہے تو آج اس کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس پیمانہ میں ناپے کہ میں کہاں سے گرا ہوں، میں کہاں سے گرا ہوں، کیا لیول تھا میرا خدا کے حضور میں، اور آج میں کہاں ہوں. مجھے اب آپ سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے. آمین. آمین. وہ فرماتا بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے. اس کا مطلب ہے ایماندار کہیں نہ کہیں اونچی جگہ پر ہے. آمین. 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 ایماندار کلیسیا، افسس کی کلیسیا کا کوئی مقام تھا،
और ऊंची जगह से जब कोई चीज गिरती है तो फिर ही पता चलता है कि कोई चीज गिरी है। आमीन। ये कलीसिया ऊंचाई पर थी, खुदा के हुजूर में इसका कोई लेवल था, लेकिन वो फरमाता है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत क्या कर दी, छोड़ दी। आमीन। और जब दुनियावी तौर पर, मिसाल के तौर पर, जब हम आपस में मोहब्बत करते जाते हैं तो हमें मोहब्बत मिलती है। जब हम किसी दूसरे को एटीट्यूड दिखाएंगे तो डेफिनेटली वो दूसरा भी आपको एटीट्यूड क्या करेगा, दिखाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत क्या हो रही है, कम हो रही है। आमीन। मोहब्बत क्या हो रही है, कम हो गई है ईमानदारों के अंदर। अब यहाँ पर कलीसिया के अंदर भी ऐसे हालात हैं, बड़े जोश के साथ मसीह यीशु को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, लेकिन उसके बाद बढ़ने की बजाय हम वहीं के वहीं हैं, बड़े नहीं हैं, तो इसका मतलब मोहब्बत कम हो गई है। आमीन। और जिस काम में मेहनत होती है कभी भी वो काम अधूरा नहीं रहता। जिस काम के लिए हम मेहनत करते हैं खुदा उस काम में हमें सरफराजी अता फरमाता है। आमीन। अब हम ख्याल करें कि मैं और आप कहीं गिरे तो नहीं हैं। अगर उस लेवल से हम गिर चुके हैं तो आज मौका है, उठ खड़े हों और खुदा के लिए काम करें। आमीन। वो फरमाता है बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है, बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है। जो लेवल आपका था, अगर आप उस लेवल से गिर चुके हैं तो आज आपके लिए और मेरे लिए खुदा के कलाम में क्या वादा है, और तौबा कर और पहले की तरह काम कर। तौबा कर और पहले की तरह क्या कर, काम कर। अब इफिसस की कलीसिया को खुदा फरमाता है तौबा करो और पहले की तरह क्या करो। इसका मतलब पहले काम ठीक हो रहे, उस तो बाद काम की हुआ स्लो हो गया। आमीन। अगर उस कलीसिया के अंदर ये कमजोरी थी तो क्या आज इस कलीसिया के अंदर नहीं है? और क्या जो बाद में ऑनलाइन सुनने वाले उन कलीसियों के अंदर ये कमजोरी नहीं है? खुदा सबसे ये सवाल कर रहा है, खुदावंद यीशु सबसे ये सवाल कर रहा है। आमीन। बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है। तो ख्याल करने की जरूरत है किसे? मुझे और आपको। खानदानों के अंदर ख्याल करें कि कहां से हम गिरे हैं, कहां हमारे खानदान का रूहानी लेवल था और हम कहां गिरे हुए हैं। आज मुझे और आपको जरूरत है। वो कहता बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है, पहले की तरह काम कर। आमीन। आमीन। यहाँ पर एक दुनियावी मिसाल है। अक्सर औकात होता है, सही है, शौहर और वाइफ के दरमियान अक्सर दो बातों पर ज्यादा जंग होती है कि तूने पहले मुझे प्यार करना हो, मुझे नहीं करता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर आप सवाल कर सकती हैं, कर सकते हैं, तो खुदा भी पूछ रहा है कि मेरी वो मोहब्बत कहाँ है जो मुझसे पहले थी। कहां से तुम गिरे हो, कहां से? अब आपका और मेरा लेवल क्या था, रूहानी म्यार क्या था खुदा की ज़ुबान में, और अब हम कहां हैं, मुझे और आपको गौर करना है। हर शख्स अपने अंदर झांके, दूसरे को नहीं देखना कि पादरी साहब की कर रहे थे, एल्डर साहब की कर रहे थे, मुबशर साहब की कर रहे थे, परस्तार साहब की कर रहे, ढोलक बजाने वाले की कर रहे। नो, किसी की तरफ ना देखे, वो देख रहा है सबको। आमीन। वो सबको देख रहा, मुझे और आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उसको देखें जो मुझे और आपको ढूंढता फिरता है। आमीन। किसी को ना देखें, अपने आप पर गौर करें। आमीन। जी, आगे वो फरमाता बस ख्याल कर और आगे तौबा कर और पहले की तरह क्या कर ले, काम कर। अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर सवालिया निशान है मेरे लिए। अगर आज भी हमने तौबा ना की इस कलाम को सुनकर, तो फरमाता है जेड़ा थोड़ा बहुत लेवल है वही देख देगा, खत्म, बिल्कुल जीरो। फरमा रहा है यहाँ पर तौबा कर। अगर तू तौबा ना करेगा तो क्या करूंगा मैं? तेरे चिरागदान को, दो तरह के, मिसाल के तौर पर ये बदन है, वो कहता हो यहाँ पर अगर हम सीखें तो बहुत सी बातें निकलती है बदन के बारे में भी, रूहानी म्यार के बारे में भी, और भी बहुत सी चीजें हैं। यहाँ पर वो फरमाता तौबा कर, अगर तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर, आमीन, तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को
उसकी जगह से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। आमीन। अब फैसला मेरा और आपका है। आजकल हम सुनते हैं, तौबा करते हैं तो वो चिरागदान फिर से बहाल होगा और जलना शुरू हो जाएगा। आमीन आमीन। अगर वो चिरागदान बुझा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता जो चिरागदान के अंदर ऑयल है वो कम होता जा रहा है, तो आज जरूरत है कि हम उस चिरागदान को फिर से बहाल करें, ऑयल को ज्यादा करें। मस्सा को भी जाहिर करता है। आमीन। तेल जो है वो किसको जाहिर करता है, मस्सा को भी जाहिर करता है। और अब यहाँ पर फरमाता है तेरे चिरागदान को। आमीन। अब हमारी जिंदगी का चिराग भी है। आमीन। वो कहता अगर तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से क्या करूंगा, हटा दूंगा। आमीन। अब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाया, उसके बाद वो खत्म हो गया, मर गया, लेकिन क्या उसके बाद उसकी जगह पर शागिर्द नहीं खड़ा हुआ। आमीन। जब खुदा ने काम लेना वो पत्थरों से भी लेने की कुदरत रखता है। आप जिंदा हैं तो जिंदा ही जिंदा रहकर हम तौबा कर सकते हैं, मरने के बाद कोई तौबा नहीं है। अभी हमारे पास वक्त है। अब यहाँ पर वो फरमाता है अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटाकर किसी दूसरे को जगह दे दूंगा। आमीन। अब मेरे ज़हन में एक और बात आ रही है, वो 5 और 3 और 1 तोड़े वाली। आमीन। उसने कहा इसको वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना, और ये खिदमत किसी और को दो क्योंकि ये इस लायक नहीं है। ऐसा ना हो हमारे साथ कि हम शुरू के दिनों में बड़े जोश के साथ थे, अगर आज हम कहीं पर ढीले हैं तो आज मुझे और आपको जरूरत है फिर से बहाल होने की। आमीन। अब यहाँ पर फरमाता है कि उस कलीसिया के फरिश्ता को लिख, यानी उस पासबान को बता कि तेरी कलीसिया के अंदर ये कमी है, उनको बताए, उनको आगाह करे। और खादम जो खुदा की तरफ से खड़े हैं उनका काम है कलीसिया को आगाह करना। आमीन। अब कलीसिया और खादम का क्या फैसला है अपनी जिंदगी के अंदर, वो उन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर वो फरमाता है तौबा कर। आमीन। अब यहाँ पर वो एक ही ख्वाहिश कर रहा है, एक ही दरख्वास्त कर रहा है कि तौबा कर ले, और खुदा तौबा करने वाले शख्स को पसंद करता है। आमीन। और हमेशा वही शख्स तौबा नहीं करते जिनके अंदर घमंड और गुरूर होता है और जिनको बड़ा कोई अपने ऊपर नाज होता है, लेकिन हमारी जिंदगी पानी के बुलबुले की मानी है, जब जमीन पर गिरता फिर जमा नहीं होता, फिर वही खत्म। हवा से एक दफा उबरती है फिर बाद में पता ही नहीं चलता इधर कोई पानी पड़ा हुआ था। ऐसा ही है। आगे पढ़े जरा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नकलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। आमीन। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नकीलियों के कामों से क्या करता है, नफरत रखता है। आमीन। जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। अब ये एक फिरका है, अब ये क्या है जी, एक फिरका है, और यहाँ पर इफसस की कलीसिया इस फिरके से बड़ी नफरत करती है। आमीन। और ये बुत परस्त लोग हैं और हर बुराई इनके अंदर पाई जाती है, और अक्सर औकात हम बहुत से ऐसे फिरकों से बड़ा दिलाजारी करते हैं, बड़ा नफरत सी करते हैं। खुदा कह रहे ठीक है तू करना है जिनसे मैं भी रखता हूँ। आमीन आमीन आमीन। आगे जरा पढ़े जरा पूरी आयत को फिर हम। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आगे। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। आमीन। जो गालिब आए। आमीन। आमीन। किस पर गालिब आए, गुनाह पर गालिब आए। जो गालिब आए मैं उससे उस दरख्त में से जो खुदा के कहां पर है, फरदौस में फल खाने को दूंगा। आमीन। अब यहाँ पर वो फरमाता है कि तू उनसे नफरत करता है जिनसे मैं भी नफरत करता हूं। अक्सर औकात हम नफरत करते हैं बुरे कामों से, गुनाह से हम भागते हैं, लेकिन दुआ से भी हम भागते जाते हैं। आमीन। अब वो फरमाता है कि मैं जानता हूं कि तू इनसे नफरत करता है, इस फिरके से नफरत करता है जिनसे मैं भी करता हूं। आमीन। लेकिन मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत क्या कर दी है, छोड़ दी है। अब मोहब्बत
हमारे अंदर से तो बड़ी नजर आती है, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, और भी बड़े रिश्ते हैं जिनसे हमारी मोहब्बत बड़ी गूढ़ी है, बड़ी गूढ़ी, लेकिन जिससे मोहब्बत करनी है उसके लिए थोड़ी सी जगह भी हमारे दिल के अंदर नहीं है। आमीन आमीन। अब फैसला मैंने करना है, आपने करना है। उसने कहा बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है। अब फैसला मेरा और आपका है कि हम कहां से गिरे। आमीन आमीन। अब आपके पास और मेरे पास वक्त है कि हम तौबा करें, वरना वो कहता है मैं तेरे चिरागदान को खत्म कर दूंगा, हटा दूंगा, उस जगह से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। आमीन। अब जो मसा हमारे अंदर बाकी बचा है, जो हमारे अंदर रूहानी लेवल थोड़ा सा बचा है, आज उसे फिर से बहाल करे ताकि वो चिराग फिर से जलना शुरू हो। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला मुझे और आपको बरकत दे।